Hello everyone, I'm Mukesh Kumar. I welcome all of you at Boma Expo Show in 2024 and I'm the product manager here at Ligong India. I'm looking after entire EV range pan India nation, and before briefing about any of the machine, I want to add some more important points. Like in the previous few years, like in an year, we have sold more than 100 units in India. That is the pure electric machinery, and these machines are performing exceptionally very well. And our first machine which we have sold, that was the 6-ton class electric wheel loader that has clocked more than 10,000 working hours, and the customer is very happy and recovered our entire amount. Which in this Boma Expo show in 2024, we have recently launched this particular product. This is a 4-ton class machinery. It's a pure electric solution for our prominent customers. Today we will discuss something about this. It's a very excellent and most innovative machinery. Why I am saying this thing, we will let it know. Now see, you just have a look over it. That how it looks. Look at its design. It's directly, you will see like European designs. Everything you will like aesthetically is very good. Look at here. It is having a highest dumping height around 3 meters of height, and we have the special design configuration for this. The operating weight of the machine is 12,900 kilograms, मीन्स 13 टन का हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। इस मशीन में हमने 11 मॉड्यूल बैटरी पैक के दिए हैं, जो कि मॉड्यूल जो मेरे हैं वो सारे के सारे लिथियम आयन बेस्ड हैं। ये लिथियम आयन स्पेशल केमिस्ट्री के साथ हैं, लाइक लिथियम फेरोफॉस्फेट। इसमें जो हमने बैटरीज यूज़ की हैं बहुत ही रोबस्ट एंड हाईली टेक्नोलॉजिकल एडवांस बैटरीज हैं, जिनको हमने एक बहुत अच्छे लेवल पे टेस्ट किया है। आई विल शो यू दिस इज अंडर द हुड। इनिशियली पहले क्या रहता था, इसमें इंजन रहा करता था। नाउ अब इसमें हमने पूरा का पूरा क्या कर दिया, बैटरी से रिप्लेस कर दिया है। इसमें हमने 11 मॉड्यूल बैटरी के दिए हैं। फॉर द सेफ्टी कंसर्न वी डू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेफ गार्ड एट द रियर एंड, दिस इज इट्स काउंटर वेट, एंड वी हैव प्लेस्ड इट सो ब्यूटीफुली so that it can be like in case of any collision it can protect my battery pack. Now come here, this is the like hood. We will open this hood and we will see a strong battery pack inside, that how it actually placed and how the things have been arranged here. Now see, it's electronically controlled. We can easily open up. This is the battery pack, lithium ferrophosphate, and it is having a 11 modules of placement. एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कोई भी ऑपरेटर इस मशीन को, इस बैटरी पैक को इजीली वॉश कर सकता है। इट इज अ कम्प्लीटली डस्ट प्रूफ, सो इट इज IP67 रेटेड, दैट्स व्हाई वी कैन हैव नो कंफ्यूजन इन दैट। एंड देयर इज अ स्ट्रॉन्ग कूलिंग सिस्टम प्लेस्ड इनसाइड इट, विच हेल्प्स कि किसी भी कंडीशन में कितना भी टेम्परेचर इसका जाएगा, दैट विल बी प्योरली रेगुलेटेड बाय इट। सो you can see there the controllers and everything is placed so beautifully, the harness system and all these wires are temperature means thermally stable. तो कैसे भी temperature conditions में it is very much stable chemistry है इसका पूरा। Now see, look at these things from the battery pack, that how this machine is going to actually function. From the battery pack we will see that how like initially क्या रहता था कि इंजन जो था, इंजन से पावर मेरा ट्रांसमिशन पे जा रहा था, लेकिन हमने इसमें से क्या किया है, एक तो टॉर्क कन्वर्टर को हटा दिया है और सीधा बैटरी पैक से मेरी सारी की सारी पावर कहाँ जा रही है, ट्रेवल मोटर के पास जा रही है। ट्रेवल मोटर्स के बाद ट्रांसमिशन पे जा रही है, ट्रांसमिशन के बाद आगे पावर ट्रेन पे जा रही है, जो कि मेरी प्योर इलेक्ट्रिक पावर ट्रेन है। एंड हियर जो हमने इसमें 2 ट्रेवल मोटर्स का यूज़ किया है, दीज आर AC मोटर्स, सिंक्रोनस मोटर्स हैं। एक मोटर जो इसमें ट्रेवल मोटर है वो 125 किलोवाट की है, दूसरी मोटर जो मेरी हाइड्रोलिक मोटर है दैट इज 95 किलोवाट। नाउ दोनों की दोनों मोटर ही मेरी क्या है, IP67 रेटेड है, एंड किसी भी कंडीशन में लाइक इट इज अ डस्ट प्रूफ एंड एज वेल एज लाइक वाटर रेजिस्टेंट। सो देयर इज नो कंसर्न कि बारिश हो गई, बैटरी पूरा लाइक वेट हो गया तो हाउ इट विल बी परफॉर्मिंग। नाउ वी विल सी इट्स लाइक अ डेमोन्स्ट्रेशन प्लीज।
स्टैंडर्ड बकेट साइज दिया है वो है मेरा 2.4 क्यूबिक मीटर का, और अगर मैं लाइट मटेरियल बकेट की बात करूं तो दैट इज 3.5 क्यूबिक मीटर बकेट साइज. नाउ दिस अरेंजमेंट हैज बीन प्लेस्ड विद द 2.4 स्टैंडर्ड बकेट साइज एंड अलोंग विद दैट इफ दिस मशीन इज परफॉर्मिंग, मान लीजिए अगर इंडियन कंडीशंस में डिफरेंट क्रशर प्लांट्स एट सेवरल एप्लीकेशन प्लांट एप्लीकेशंस हो गए, लाइक सीमेंट हो गया, स्टील प्लांट्स हो गए, जहां पर इस मशीन का बहुत अच्छा यूज किया जा सकता है, वहां पर इसका प्रोडक्शन मेरे डीजल वाली मशीनरी से कम 10 से 15% ज़्यादा होगा. यदि जहां पर मेरी डीजल मशीनरी 200 टन पर आवर का प्रोडक्शन देती है, ये मशीन मेरी वहां पर उसी सेम जगह पर सेम प्लेटफॉर्म पर मेरी ये वाली मशीन कम से कम नहीं तो 220 का देगी. अगर वो 250 देती है तो 270 का देगी. हर घंटे मेरा कम से कम 15 से 20% का जो प्रोडक्शन रेट है वो ज़्यादा निकलेगा. प्लस क्या है कि आपने इसके बैकग्राउंड में देखा होगा, व्हेन इट वाज लाइक परफॉर्मिंग इट्स डेमो, यू विल फाइंड दैट दिस मशीन इज बिट फास्ट as compared to the diesel machine. And along with that, to charge this machine, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग बैटरी पैक दिया गया है वो 193 किलोवाट आवर का है. अगर मैं 193 किलोवाट आवर बोल रहा हूँ तो इसका मीनिंग क्या है, इसमें हम 193 बिजली के यूनिट सेव कर सकते हैं. अच्छा, उन्हें सेव करने के बाद उसे चार्ज भी करना पड़ेगा. उसे चार्जिंग के लिए मैंने एक सोल्यूशन लेकर के आया है, डीसी फास्ट चार्जर, एंड दैट इज अ 160 किलोवाट डीसी फास्ट चार्जर विच विल बी प्रोवाइडेड अलॉन्ग विद दिस मशीन. एंड इसके अंदर 2 गन है. इन दोनों गन से हम 2 डिफरेंट मशीनों को चार्ज कर सकते हैं एट द सेम टाइम. बट इस मशीन के अंदर आई एम शोइंग यू there is a single charging port जो कि एक GBT टाइप का है. एक सिंगल गन लगा करके मैं इसे मात्र 60 to 70 मिनट्स के अंदर इसे कंप्लीटली चार्ज कर सकता हूँ. और एक बार चार्ज होने के बाद ये मशीन मात्र 60 से 70 मिनट में इसे चार्जिंग में लगेंगे. उसके चार्ज होने के बाद ये आराम से 6 घंटे तक काम कर सकती है. चलिए बात करते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ की. अगर मैं इस मशीन को ले लेता हूँ बाई चांस, तो मुझे एक इंफ्रा बिल्डअप करना पड़ेगा मेरी साइट पर. तो उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी. सबसे पहली रिक्वायरमेंट होगी मेरे लिए कि मैं एक ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगी. जो एक ट्रांसफार्मर है वो कम से कम 250 kVA का होना चाहिए. इट इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट. यस, आई एग्री कि हाँ शुरू में थोड़ा सा पैसा लगेगा, लेकिन मेरी कंटिन्यूस सेविंग 10, 12, 15 साल के लिए हमेशा के लिए सेविंग करके देगा. साइड बाय साइड क्या है, एक बार मैंने 250 kVA का ट्रांसफार्मर लगा दिया अलॉन्ग विद द कंट्रोल पैनल, जो कि मेरी सप्लाई देगा डायरेक्टली 3 फेज सप्लाई देगा. मेरे चार्जर को 160 किलोवाट का है जो. फिर एक बारी 2 मशीनों के लिए हम एक चार्जर रिकमेंड करते हैं, तो 2 मशीनें मेरी सिर्फ और सिर्फ एक चार्जर से चार्ज हो सकती हैं. एट द सेम टाइम अगर कस्टमर दूसरी मशीन लेना चाहता है तो हम जो भी एडिशनल कॉस्ट मेरे इस चार्जर की रहेगी वो उसमें से माइनस कर दी जाएगी. सेकंड, अगर मैं इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो इसके एप्लीकेशन, इस मशीन के पर्टिकुलर एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ क्रशर प्लांट नहीं है, ये स्टील प्लांट में जा सकती है, पावर प्लांट्स में जा सकती है, कोल हैंडलिंग कर सकती है, इवन एग्रीकल्चरल के लिए भी एक बेस्ट मशीन है. क्रशर प्लांट तो इसका मेन जोन ऑफ वर्किंग था. जो कस्टमर का सबसे बड़ा कंसर्न है कि सर इसका कॉस्ट क्या है. इसका जो कॉस्ट हमने निकाला है, जनरली आप अगर मैं डीजल से इसे कंपेयर करूं, सेम सेगमेंट को कंपेयर करूं, तो लगभग ये 2 से 2.5 गुना ज़्यादा जाता है. लेकिन इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो मेरी एडिशनल कॉस्ट है जो मैंने इनिशियली दी है वो मैं मात्र 15 महीने के अंदर रिकवर कर सकता हूँ. ये सारा का सारा मेरे वर्किंग स्टाइल पे, मेरे वर्किंग आवर्स पे डिपेंड करता है कि मैं 1 साल में से कितना चलाने वाला हूँ. लगभग अगर ये 3000 से 4000 घंटे सालाना चलेगी तो मैं इसकी कॉस्टिंग को 12 से 15 महीने के अंदर आई कैन यूटिलाइज. थैंक यू सो मच.